اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے بطول۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے رسول۔ اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے بطول۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آئی نئے حیات کا یہ سرمدی اصول۔ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ معزز محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ ہم خیر الرسل خیر الانبیاء خیر الخلق خیر البشر نبینا و حبیبنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ہم کو ایک ایسے نبی ایک ایسے رسول کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ دنیا کی ہر خیر ان سے وابستہ ہے، دنیا کی ہر عظمت آپ کی ذات گرامی سے متعلق ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پانے والی ہر چیز محترم معزز اور مکرم ہو جاتی ہے۔ جہاں تک سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان عالی شان کا تعلق ہے تو یہ ایسا خاندان ہے کہ جس خاندان کے مثل کوئی دوسرا خاندان نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شہر میں قدم رکھا، آپ کی پیدائش مبارک ہوئی، وہ شہر تمام شہروں سے افضل۔ آپ نے جس زبان میں گفتگو فرمائی وہ عربی زبان تمام زبانوں میں افضل۔ آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام پیغمبروں کے صحابہ سے افضل قرار پائے۔ آپ کا دین کامل دین اور آپ کی شریعت تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دینے والی شریعت ہے۔ تو اسی طرح آپ کا خاندان عالی شان بھی دیگر تمام خاندانوں قبیلوں سے معزز محترم ہے۔ میں برملا آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی نسبت کا انکار کرتا ہے، کسی بھی نسبت رکھنے والے کی عظمت کا انکار کرتا ہے، تو دائرہ اہل سنت و جماعت سے 100% خارج ہے۔ اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان عالی شان کی عظمتوں کا منکر ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سب خاندان برابر برابر ہیں، سب قبیلے برابر برابر ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دیگر خاندانوں پر کوئی شرف حاصل نہیں ہے، کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے، تو ایسا کہنے والا 100% اہل سنت و جماعت کے دائرے سے خارج ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان خود اپنے خاندان عالی شان کی عظمتوں کا دنیا بھر میں اعلان فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے یہ بات دن کے سورج سے زیادہ روشن ہو کے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کو تمام خاندانوں میں سے منتخب فرمایا۔ بنو ہاشم میں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو خاندان بنو ہاشم کی وہ شان ہوئی کہ صبح قیامت تک خاندان بنو ہاشم کے کسی بھی فرد پر زکوٰۃ لینا ناجائز قرار دیا گیا، اور ان کو اگر زکوٰۃ کا مال دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ یہ ان کے شرف ان کے امتیاز کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان خود اس کی وجہ یہی ارشاد فرمائی کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، وہ ان کے شائع نشان نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اہل بیت پاک کے لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز خاندان کے محترم افراد کے لیے زکوٰۃ کا مال دینا ناجائز قرار پایا، وہ کسی دوسری وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے اور وہ اتنے پاک ہیں کہ ان کی خدمت پاک مالوں سے کی جائے۔ خاندان بنو ہاشم کا یہ وہ شرف ہے، یہ وہ امتیاز ہے کہ جو صبح قیامت تک کسی دوسرے خاندان کسی دوسرے قبیلے کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ پورے خاندان بنو ہاشم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی سب سے بڑھ کر چمکتا دمکتا نظر آنے والا روشن ستارہ ہے، کوئی ماہ کامل ہے تو وہ ذات گرامی سید الشہداء امام علی مقام امام حسین شہید دشت کربلا
अलैहिस्सलाम के वालिद मुकर्रम मौला अलीउल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात गिरामी है, जिनके बारे में सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि अल्लाह ने हर नबी की औलाद को उसकी पुश्त में रखा, लेकिन मेरी औलाद को अल्लाह ने अली की पुश्त में रखा, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का जो निकाह हुआ वो ऐसे कूहे नूर से हुआ, ख़ानदान नबूवत के ऐसे चमक दमक रखने वाले हीरे से हुआ कि पूरी कायनात में जिनकी कोई मिसाल नहीं। और मौला अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ौजे मुकर्रमा की वो शान है कि आदम से लेकर सुबह क़यामत तक पैदा होने वाले किसी इंसान को ऐसी शान वाली ज़ौजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं अता फरमाई जैसी शान वाली ज़ौजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौला अलीउल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अता फरमाई। किसी की भी शादी ज़मीन पे होती है, लेकिन मौला अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का निकाह सय्यदा कायनात मखदूम कायनात शहज़ादी कौनैन सय्यदतुल बतूल अज़्ज़हरा अलैहिस्सलाम से जो हुआ ज़मीन पे बाद में हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले आसमानों में उनके निकाह का ऐलान फरमाया, फरिश्तों में पहले ऐलान हो गया। चुनाचे हज़रत मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ख़ानदान बनु हाशिम के सबसे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम बरगुज़ीदा शख्सियत के हामिल हैं। और सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा का ताल्लुक़ भी ख़ानदान बनु हाशिम से है, जो तमाम जन्नती औरतों की बग़ैर किसी शर्त व क़ैद के सय्यदा हैं, सरदार हैं। तमाम जन्नती औरतों की सरदारी का मनसब जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया। और सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा के बतन मुबारक से दो ऐसे आबदार मोती ज़ाहिर हुए, जिनमें से एक का नाम हसन रखा गया और दूसरे का नाम हुसैन रखा गया, और जिनका नाम पैगंबरों के इमाम रसूलों के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। और इरशाद ये फरमाया था कि ऐसे नाम दुनिया में इससे पहले और किसी के नहीं रखे गए, यानी जिस तरह उनकी शख्सियत बेमिसलो बेमिसाल है, उनके लिए नामों का इंतखाब भी बेमिसलो बेमिसाल हुआ। मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम और सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा का पूरा घराना सिलसिलतुज़ ज़हब है। ये पूरी जंजीर सोने की जंजीर है। और इस ख़ानदान आलीशान में सय्यदा कायनात और मौलाए कायनात के बाद सबसे बढ़कर अज़मत और शान के हामिल जो जगमगाते हुए सितारे हमको नज़र आ रहे हैं, और जिनसे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत फैज़याब हुई है, और जिनकी बरकतें पूरी कायनात को नसीब हुई हैं, हो रही हैं, वो हसनैन करीमैन हैं। उनमें से एक सैयदुश शुहदा सैयदुना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हैं, जिनकी शहादत खफ़ी है, जिनको किसी मलऊन ने, किसी जहन्नमी बदबख्त ने, जिनको जहर जलवा दिया आपने किसी बातिल मंसूबे के तहत। उसका इरादा ये था कि आप दुनिया से तशरीफ़ ले जाएं, लेकिन आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहादत का अज़ीम मनसब अता फरमा, और आपकी शहादत खफ़ी है। शहादत खफ़ी का मतलब ये है कि जिस तरह मैदान जंग में लड़ते हुए जो शहादत होती है वो शहादत जली होती है, और उसके अलावा दीगर तरीक़ों से जो शहादत होती है वो शहादत खफ़ी है। और फिर सैयदुश शुहदा इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन शहीद दश्त करबला अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शहादत हुई, वो सैयदुना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत के बरक्स शहादत जली हुई। इमाम हसन की शहादत खफ़ी है, और इमाम हुसैन की शहादत जली है। यानी मतलब ये कि मैदान जंग में आपने तलवार से लड़ते हुए तीर और तलवार के ज़ख़म खाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी जान का नजराना पेश किया। इस तरह सय्यदा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों साहिबजादे जो पहले से सय्यद भी हैं, सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना भी हैं, वक्त आने पर सय्यदुश शुहदा भी साबित हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहीदों की सरदारी का ताज फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के दोनों साहिबजादों के सर पे रखा। नहीं मालूम कि दुश्मन के क्या क्या मंसूबे थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि उनके दुश्मनों की खबर पर कोई थूकने के लिए भी तैयार नहीं है। और हसनैन करीमैन की और उनके पूरे ख़ानदान की अज़मत और शान जो ज़मीनी हकीकत बनकर हमारी आँखों के सामने है, आज हम देखते हैं
कि हसनैन करीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद में आने वाले नफूस खुदसिया के मज़ारात, उनके मकाबिर, उनकी दरगाहें, उनके रोज़े ज़मीन पर उसी तरह जगमगाते हुए नज़र आ रहे हैं जिस तरह आसमान पर सितारे चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। आप करबला शरीफ में जाके देखिए, आप जन्नतुल बकी शरीफ में जाके देखिए मदीने पाक में, आप बगदाद में जाके देखिए, आप अजमेर में जाके देखिए, आप दुनिया के खित्ते खित्ते में जाके देखिए, आपको पूरी रूए ज़मीन पर सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा के औलाद में पैदा होने वाली मुबारक शख्सियतें उस तरह चमकती हुई नज़र आ रही हैं जिस तरह आसमान पर चमकते हुए सितारे होते हैं। उनके मज़ारात से बाकायदा लोगों को फैज़ान भी हासिल हो रहा है। ये हिदायत सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पाक के वफ़ादारों के लिए है। रहा मुआमला सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अदब का, उनकी ताज़ीम का, तो अहले सुन्नत व जमात के बुनियादी अक़ाइद में शामिल है। और अहले सुन्नत व जमात का कोई भी फ़र्द सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखी नहीं करता। वो एक दूसरा फ़िरक़ा है जो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखियाँ, बेबाकियाँ करते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पाक से अपना ताल्लुक़ मज़बूत से मज़बूत तर रखा जाए। और अहले बैत पाक से ताल्लुक़ मज़बूत रखने का जो प्रैक्टिकल तरीक़ा इस खैर उम्मत में क़रनों से, सदियों से जारी है, वो ये है कि किसी भी एक सच्चे कामिल सिलसिले से वाबस्तगी इख्तियार की जाए। ये दर हकीकत अहले बैत पाक से जुड़ने का ये बेहतरीन तरीक़ा है। गोया एक ऐसा नेटवर्क है कि जो उम्मती को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से जोड़ता है। उस नेटवर्क को कभी सिलसिले क़ादरिया का नाम दिया जाता है, कभी सिलसिले चिश्तिया का, कभी उसको सिलसिले नक्शबंदिया कहते हैं, कभी उसको सिलसिले सोहरावर्दिया कहते हैं, कभी उसको सिलसिले रिफ़ाइया, कभी उसको सिलसिले शाज़िलिया कहते हैं। तो ये तरीक़त के जो सलासिल हैं, ये सलासिल तरीक़त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पाक से हमारा कनेक्शन मजबूत करते हैं, हमारा ताल्लुक़ जोड़ते हैं। और विलायत का जो तसव्वुर है, करामत का जो तसव्वुर है, जो दरगाही निज़ाम है, जो सलासिल तरीक़त के फैज़ान के हवाले से ये जो निज़ाम दुनिया में पाया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में पाया जाता है। आप देखेंगे कि जिस तरह अहले तवहुब के यहाँ वली का, करामत का, दरगाह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी तरह अहले तशय्युअ के यहाँ भी 12 इमामों के बाद ना उनके पास विलायत का कोई कॉन्सेप्ट है, ना करामत का कोई कॉन्सेप्ट है, ना उनकी कोई दरगाह होती है, ना उनके पास सलासिल तरीक़त का फैज़ान जारी है। अज़ीज़ान मुहतरम, अहले बैत पाक का पूरा फैज़ान अहले सुन्नत व जमात में खुतब बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तवस्सुत से जारी है। आपकी रूहानी सरपरस्ती में तमाम सलासिल के औलिया और तमाम दुनिया के सलासिल तरीक़त उम्मतियों को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ने का काम अंजाम देते हैं। तो हमको चाहिए कि मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात पर मजबूती के साथ कायम होकर सलासिल तरीक़त से वाबस्ता हों। और यकीन जानिए कि अहले बैत पाक की मोहब्बत के बग़ैर ईमान पाया जाए ये नामुमकिन है। और यकीन जानिए कि ईमान की इमारत की बुनियाद की ईंट पंजतन पाक की मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम आपको हमको दुनिया और आखिरत में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पाक से सच्ची पक्की वाबस्तगी नसीब फरमाए।